Good morning, class 8 student. Lesson for cube and cube roots. I'm going to explain now. On the cube roots, I will start some problems to explain to you. So, to find cube roots of any perfect cube number, two methods are there. दो तरीके से हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर का. One is estimation method. Another is prime factorization method. Okay. So क्यूब रूट निकालना है, कुछ परफेक्ट क्यूब नंबर दिया रहेगा. You can find it in two ways. One is estimation method, another is prime factorization method. So prime factorization method I will explain later how this method is applied to find the cube root of any perfect cube number. So today I will discuss regarding how to find cube root of any perfect cube number by the estimation method, or they can be also said by finding estimation by finding their units and 10 digit in bracket estimation method. Okay, so by finding their units and 10 digit means same estimation method. What is units and 10 digit? I am going to explain now. Now remember, two things you remember. Now you will see that when you find when you are going to find cube root of any perfect cube number which are 1 digit, 2 digit or 3 digit, the answer will come in 1 digit. Okay, the answer will come in 1 digit. Whenever you find the cube root of any perfect cube number, जब हम क्यूब रूट निकालेंगे कोई परफेक्ट क्यूब नंबर का जो दिया है, अगर वह परफेक्ट क्यूब नंबर 1 डिजिट का होता है, या वह परफेक्ट क्यूब नंबर 2 संख्या का होता है, या वह परफेक्ट क्यूब नंबर 3 संख्या का होता है, इस तरह के संख्या के नंबरों को क्यूब रूट निकालोगे, जो आंसर आएगा वह एक संख्या का आंसर आएगा. मान लो एक 3 डिजिट का परफेक्ट क्यूब नंबर का तुमने क्यूब रूट निकाला, मान लो 2 आया, तो 2 क्या है, आंसर 2 आया. 2 क्या है, एक डिजिट का नंबर. नाउ दिस 2 इज इन विच प्लेस? दिस 2 इज इन वंस प्लेस. वंस प्लेस, या इन सम बुक्स इट इज रिटन यूनिट प्लेस. ओके, या दैट इज व्हाई this 2 is also known as unit digit. Okay, because 2 is written in the ones or the unit place. So now bigger numbers are there. जब 3 संख्या से बड़ा संख्या का नंबर होगा, मान लो 4 संख्या, 5 संख्या या 6 संख्या का, अगर तुम्हें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा कोई परफेक्ट क्यूब नंबर का जिसका संख्या 4 भी हो सकता है, वही परफेक्ट क्यूब नंबर 5 संख्या के भी हो सकता है, वही परफेक्ट क्यूब नंबर 6 संख्या भी हो सकता है. जब इस तरह के संख्या के नंबरों का परफेक्ट क्यूब निकालोगे, जब आंसर आएगा, आंसर ऑलवेज विल कम इन 2 डिजिट. ओके, 2 संख्या वाली आंसर आएगा. मतलब मान लो एक 6 संख्या की परफेक्ट क्यूब नंबर का तुमने क्यूब रूट निकाला, तो जब निकाल लोगे आंसर मान लो आया 20, मान लो आया तुम्हारा 14, तो ये 2 डिजिट का आंसर आया. तो ये 2 डिजिट में ये 4 को कौन सी प्लेस बोलते हैं? यूनिट प्लेस. और इसको ये जो 1 लिखा मैंने कौन सी प्लेस में? टेंस प्लेस. तो 4 हो गया यूनिट डिजिट और 1 हो गया 10 डिजिट. ओके, नाउ अब एस्टिमेशन मेथड करने से पहले यू हैव टू नो वन टेबल. जब भी क्यूब रूट निकालोगे कोई परफेक्ट क्यूब नंबर का, वन टेबल यू हैव टू रिमेंबर. और व्हेन सॉल्विंग this type of questions by estimation method, when you are going to find the cube root, then write the table on one side of your answer sheet. Okay, then you start finding the cube root of the perfect cube number given. So what is the table? Today I am going to explain. The table is table ये क्या, कौन सा टेबल, उसके यहाँ पे देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. परफेक्ट क्यूब of all the 1 digit number, sorry, cube of all the 1 digit number, ये हुआ उसका टेबल का नाम. तो सारे जो एक संख्या का नंबर है उसकी क्यूब करोगे, एक आंसर आएगा.
that is the table which you have to remember when solving questions on finding cube root by finding their units or and 10 digit or by estimation method. Now I am writing the table. सारे एक संख्या का क्यूब का टेबल तुम्हें याद रखना पड़ेगा. तो फर्स्ट एक संख्या होता है 0, इसका क्यूब करने का मतलब है 0 to the power 3. तो 0 into 0 into 0, 0 0 is 0, multiply 0 is equal to 0. Now next one digit number 1, 1 का क्यूब करोगे 1 into 1 into 1, 1 1 is 1, multiply this one coming 1. Then next is 2 cube. Next after 1, दूसरी next one digit number is 2, make the cube of this one. 2 into 2, 2 cube मतलब 2 को 3 बार multiply करो. 2 2 is 4, multiply 2, multiply this 2 is equal to 8. Now 3 cube, 3 into 3 into 3, that is 3 3 is 9, into 3, that is 3 9 is 27. Then 4 cube, 4 into 4 into 4, 4 4 is 16, 16 multiply 4, 16 multiply 4 is 64. Okay, then 5 cube, 5 cube मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो. 5 into 5 into 5, this 2, 5 5 is 25, multiply 5, multiply 5, then again 25 multiply 5, 125. 6 cube, 6 into 6 into 6, multiply this 2 6 first, 6 6 is 36, multiply 6, multiply 6. So 36 multiply 6 will come 216. Okay, next table 7 cube, 7 into 7 into 7, 7 7 is 49, multiply 7, multiply 7. Now 49 multiply 7 will come 343. Next one digit number is 8, 8 cube, 8 into 8 into 8, 8 into 64 into 8 is equal to will come 512. Okay, last one digit number is 9. After 8, 9 is coming. You make the cube of 9. 9 into 9 into 9, 9 9 is 81, multiply 9, that is 9 1 is 9, 9 8 is 72. So this table we have to write down when solving problems like this. But when solving the problem like this on your copy, don't write the whole table. On one side of the answer sheet, you can write like this: only 0 cube is equal to 0, 0 cube is equal to 0, 1 cube is equal to 1, 2 cube is equal to 8, 3 cube is equal to 27, 4 cube is equal to 64, 5 cube is equal to 125, then 6 cube is equal to 6 cube is equal to coming 216, 7 cube is equal to 343, 8 cube is equal to 512, and 9 cube is equal to 729. So whenever you are finding the cube root of any perfect number given by finding their units and 10 digit or by estimation method, on one side, on the right hand side of your paper where you are solving the question, draw a line and write this table. Not the full table, not required. 0 to the power 3, what comes 0? In this way, 1 to the power 3, 1, what comes 1? So this table you write down. After that you start solving the question. Okay, class 8 students, just few minutes back I have explained the table. That table in short you write down. 0 cube is equal to 0, 1 cube is equal to 1, 2 cube is equal to 8. Like this, 9 cube is equal to 729. This will help you to find the cube root of all this number by finding the unit and the 10 digit of the answer. Okay. Now 729, first number I am writing. You have to find the cube root of this number. Now ये 3 संख्या का नंबर है. Remember, जो भी 3 संख्या का नंबर है, ये जो तीनों नंबर को देख रहे हो, these are 3 digit number. कोई भी 3 संख्या का नंबर का क्यूब रूट निकालोगे तो आंसर एक संख्या में आएगा. So now write the number. नेक्स्ट नंबर का अंतिम संख्या 9 है. ओके, the last digit is 9. Then now write 9. Now make the cube of 9.
cube of 9 is 9 to the power 3. That is, multiply 9 3 times. Okay, so 9 9 is 81 into 9, that is coming 9 1s are 9 and 9 8 is 72. तो 9 क्यूब का आंसर कितना 729 आया। अब इस नंबर का लास्ट संख्या क्या है 9, सो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा दिस 9। सो क्यूब रूट of 729 is the 9. So तीन संख्या का नंबर जब क्यूब रूट निकालेंगे जो आंसर आएगा एक संख्या का आंसर आएगा। अब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे देखोगे ये आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट 343, सेम लाइक इट इज 3 डिजिट नंबर, लास्ट डिजिट इज 3, ओके, लास्ट डिजिट इज 3, मेक द क्यूब ऑफ 3 मतलब 3 टू द पावर 3। नाउ 3 टू द पावर 3 means you multiply 3 times, 3 3 is 9 into 3, that is 27. So 3 to the power 3 का आंसर 27 आया। 27 का लास्ट डिजिट क्या है 7, 7 हो जाएगा इसका क्यूब रूट का आंसर। सो क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। ये नंबर का जो लास्ट वाला संख्या है 7, ये 7 हो जाएगा इसका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। तो तीन संख्या का नंबर का जो क्यूब रूट निकालेंगे उसका आंसर जो आएगा एक संख्या क्या आएगा। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे दिस आंसर विल कम। नेक्स्ट 512, ओके, लास्ट डिजिट इज 2 इज लास्ट डिजिट। नाउ इस 2 का क्यूब करोगे 2 into 2 into 2 that is 4 into 2 that is 8। यहाँ पे एक ही संख्या का नंबर आया तो ये 8 ही हो जाएगा इसका क्यूब रूट ऑफ 512 is 8। तो ये सारे जो 8 7 9 आया ये सब एक संख्या का नंबर है और इसका प्लेस क्या है यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट नंबर। ये सारे यूनिट डिजिट नंबर मतलब एक संख्या का जो नंबर लिखा हुआ ये कौन सी प्लेस में लिखा हो यूनिट प्लेस में। तो 9 विल बी यूनिट डिजिट नंबर, 7 विल बी आल्सो यूनिट डिजिट नंबर, 8 विल बी आल्सो यूनिट डिजिट नंबर। तो व्हाट यू सॉ, मल्टीप्लाई करोगे अगर 3 डिजिट का आंसर आया तो लास्ट वाला डिजिट हो जाएगा आंसर क्यूब रूट इसका। अगर 2 डिजिट का आंसर आया तो उसका लास्ट डिजिट हो जाएगा इस नंबर का क्यूब रूट। अगर एक संख्या का आया तो वही संख्या हो जाएगा क्यूब रूट इसका, ये नंबर दिए हुए नंबर का। नाउ आई विल गो टू दिस वन 4 डिजिट नंबर, हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4 डिजिट नंबर। ओके, नाउ सी द स्टेप्स केयरफुली, वेरी इजी। नाउ First is 8,000, okay, 4 digit number, little different from the 3 digit number, okay. Circle the last 3 digit, लास्ट 3 संख्या को सर्कल कर दो तो क्या बना 0 0 0। अब इसका इस 3 संख्या में जो लास्ट वाला संख्या क्या है 0 0, इसका क्यूब करो 0 into 0 into 0 0 0 0 0 0 0 आ गया। So this 0 will be the answer of the unit digit, okay, आंसर के यूनिट डिजिट का 0 हो जाएगा और एक 10 डिजिट में और एक नंबर आएगा उसको निकालना है। तो इस आंसर के यूनिट डिजिट 0 मिल गया। 0 कहां से आया, ये जो नंबर 3 संख्या का नंबर को सर्कल किया इसको लिखा, इस 3 संख्या में लास्ट संख्या ये है, इस 0 को क्यूब किया, क्यूब करने का मतलब 3 बार 0 को मल्टीप्लाई कर 0 आया। ये जो 0 है ये हो जाएगा इसका क्यूब रूट का जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट का नंबर। अब 10 डिजिट का नंबर आगे और एक नंबर आएगा दैट इज द 10 डिजिट नंबर। वे कैसे निकालोगे, नाउ सी क्या नंबर रहेंगे 8। नाउ 8 यू सी इन द टेबल 8 इज देयर 0 1 8, 8 इज देयर। 8 कैसे आ रहा है 2 to the power cube is equal to 8, ओके। नाउ किसका क्यूब किया 2 का क्यूब किया मैंने 8 लाने के लिए, तो ये 2 जो हो जाएगा 2 जो है 2 you have to write it before 20, so before 0, so 2 is the 10 digit answers 10 digit number. The 20 is the answer if you make the cube root of this 8000. That means 20 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8000 आएगा। This is the cube root of 8000. Now next come 2744. 2744. Circle the last digit. Same like this. Write this number. Last number is 4. Write 4 here. इसका क्यूब करोगे like same like this. 4 into 4 into 4. 4 4 ja 16 and 16 4 ja will come
64 will come. Okay, now here 0 came, here 64 came. 4 4 is 16, 16 4 is 64. Now in this number the last digit 4, तो 4 हो जाएगा, इसका जो आंसर निकलेगा इसका write down 4 here, unit digit. Now another digit will be there, 10 digit. For that how will you get? See, कौन सा ये नंबर, दो नंबर छोड़ दिया ना, दो देखो पहले टेबल में है, दो टेबल में नहीं है, तो तुम्हें कौन कौन सा नंबर देखना पड़ेगा? वे नंबर जो दो से छोटा है। दो से कौन कौन सी नंबर छोटा है? 1 और 0, लिख दो यहाँ पे 1 और 0। ओके, दो नंबर टेबल पे नहीं है, 0 1 8 दो नहीं, तो क्या देखोगे? दो से छोटा कौन सा नंबर है? 1 और 0। ओके, अब 1 और 0 में बड़ा कौन है? बड़ा ये है, सो 1 विल बी द, you have to write here, this is the 10th digit of the answer. तो 14 क्यूब रूट इसका करोगे तो 14 आएगा, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट 4096। ओके, 4096 लाइक द सेम वे सर्कल करो, कर दिया, यहां लिखो 096 लिख दिया, लास्ट डिजिट 6 है, मतलब 6 का क्यूब करोगे कितना आया? 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 216। ओके, अब आंसर का लास्ट डिजिट जो होगा यहां पे लिख दो, यूनिट डिजिट का आंसर आ गया। अब बचा 4। अब देखो 4 यहां पे है, टेबल में 4 है, 0 1 8, 4 नहीं है, तो 4 से छोटा क्या क्या नंबर है? 1 और 0, 1 एंड 0। अब दोनों में बड़ा कौन है? 1, तो 1 विल बी द 10th डिजिट। ओके, नंबर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट कम टू द 1728, 28 सर्कल, 728, लास्ट डिजिट 8, मेक द क्यूब ऑफ 8, 8 into 8 into 8, 8 8 जा 64 एंड 64 8 जा 512 will come, तीनों को मल्टीप्लाई कर 512 आएगा। इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है? 2, 2 लिख दो, 2 होगा यूनिट डिजिट का नंबर। अब इसका आगे क्या नंबर आएगा? बचा क्या? 1। अच्छा, यहां पे देखो टेबल में 1 है, यस टेबल में 1 है, 1 कैसे आया? 1 to the power cube is equal to 1। ओके, ये 1 है, तो किसका क्यूब किया मैंने? 1 का क्यूब किया, इस 1 का क्यूब किया, 1 विल कम बिफोर 12, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट 2197, 2197 सेम लाइक दिस, सर्कल करो, लिखो 197 आया, लास्ट 7, 7 का क्यूब करो, 7 into 7 into 7, तो कितना आएगा? 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ओके, इस नंबर का लास्ट संख्या क्या है? 3, 3 को यहां लिख दो, 3 हो गया आंसर का यूनिट डिजिट। अब आगे क्या नंबर आएगा? क्या बचा? 2, टेबल में 2 है, 2 नहीं है, तो 2 से छोटा कौन कौन सी नंबर है? 1 और 0, लिख दो 1 और 0, दोनों में बड़ा कौन है? 1, तो 1 आगे आ जाएगा, ये आंसर हो गया। लास्ट 4913, 4913 सर्कल करो, 913। ओके, हो गया, लास्ट डिजिट 3, इस 3 का क्यूब करो, 3 into 3 into 3, 3 3 is 9 and 3 9 is 27। हो गया, लास्ट डिजिट 7, 7 लिख दो यहाँ पे, 7 इज द यूनिट डिजिट। इसके आगे क्या नंबर आएगा? 10 डिजिट नंबर कैसे निकालोगे? क्या बचा हुआ नंबर 4, 4 टेबल में है, 4 टेबल में नहीं है, सो 4 से छोटा कौन कौन सी नंबर है? 1 और 0, लिख दो यहाँ पे 1 and 0। अब दोनों में बड़ा कौन है? बड़े को लिखना पड़ेगा, बड़ा 1 है, 1 लगा दो, तो 17 हो जाएगा क्यूब रूट इस नंबर का। 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, दिस आंसर विल कम। दिस इज द स्टेप। थैंक यू।